हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ए न्यू स्टोरी। जो नाम आप यहाँ देख सकते हैं, कीपिंग द रूट्स स्ट्रॉन्ग। तो उस स्टोरी को आज हम कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहले उस स्टोरी को एक बार लाउडली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो जर्नी है हमारा इंग्लिश पे एक्सपर्ट होने का, वो एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि रीडिंग आपका भी इम्प्रूव हो जाए। नाम है कीपिंग द रूट्स स्ट्रॉन्ग। Once upon a time, there were two neighbors living next to each other. One of them was a retired teacher, and another was an insurance agent who had a lot of interest in technology. Both of them had planted different plants in their garden. The retired teacher was giving a small amount of water to his plants and didn't always give a full attention to them, while the other neighbor, interested in technology, had given a lot of water to his plants and looked after them too well. The retired teacher's plants were simple but looked good. The insurance agent's plants were much fuller and greener. One day, during the night, there was a heavy rain and a wind due to a minor storm. Next morning, both of the neighbors came out to inspect the damage to their garden. The neighbor, who was an insurance agent, saw that his plants came off from the roots and were totally destroyed. But the retired teacher's plants were not damaged at all and were standing firm. The insurance agent neighbor was surprised to see it. He went to the retired teacher and asked, "We both grew the same plants together. I actually looked after my plants better than you did for yours, and even gave them more water. Still, my plants came off from the roots while yours didn't. How is that possible?" The retired teacher smiled and said, "You gave your plants more attention and water, but because of that, they didn't need to work themselves for it. You made it easy for them, while I gave them just an adequate amount of water and let their roots search for more. And because of that, their roots went deeper and that made their position stronger. That is why my plants survived." Moral: this story is about parenting, where children are like plants. If everything is given to them, they will not understand the hard work it takes to earn those things. They will not learn to work themselves and respect it. Sometimes it's best to guide them instead of giving them. Teach them how to walk, but let them follow their path. तो ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। तो चले अब हम उसको लाइन बाय लाइन समझने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इवन वर्ड बाय वर्ड हम उसको समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की मेरे चैनल को, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। उस नॉलेज को स्प्रेड करने में आप भी सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। तो पहले जो हमारा है कीपिंग द रूट्स स्ट्रॉन्ग, यहाँ स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग। कीप मतलब रखना, कीपिंग द रूट्स होता है जड़, पेड़ का जो जड़ होता है उसे स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो क्या करना, रूट्स अपने जड़ को स्ट्रॉन्ग मजबूत रखना, अपने जड़ को मजबूत रखना, जो जड़ होता है उसे मजबूत करना। उस बारे में स्टोरी है तो देखे उसमें क्या कैसे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। वंस अपॉन ए टाइम, फर्स्ट लाइन हमारा, वंस अपॉन ए टाइम एक बार, देयर वेयर टू नेबर्स। क्या रहते थे? देयर वेयर टू नेबर्स, दो नेबर्स रहते थे। नेबर्स होता है पड़ोसी, एक दूसरे के साथ रहते थे। दो पड़ोसी एक जगह रहते थे। लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब लिविंग रहते थे मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के पास ही रहते थे। नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के पास ही रहते थे। ईच अदर एक दूसरे के नेक्स्ट टू पास ही रहते थे, लिविंग रहना। वन ऑफ देम वॉज रिटायर्ड टीचर। उन दोनों में से एक क्या था? एक था। वन ऑफ देम वाज मतलब था, रिटायर्ड टीचर एक टीचर था, एक शिक्षक था जो रिटायर हो गए अपना मतलब नौकरी का जो टाइम
था वो ख़त्म हो गया, रिटायर्ड है अभी। एंड अदर क्या थे, अनदर वाज एन इंश्योरेंस एजेंट, जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उसका एजेंट है अदर वन। तो एक रिटायर्ड टीचर है और दूसरा क्या है, इंश्योरेंस एजेंट। हु हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, हु हैड, जो इंश्योरेंस एजेंट है उसका लॉट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लॉट ऑफ होता है बहुत सारे, इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में बहुत सारा इंटरेस्ट है। तो दो नेबर्स रहते थे, दो पड़ोसी रहते थे, एक है रिटायर्ड टीचर एंड दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जिसका बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में। तो बोथ ऑफ देम वो दोनों हैड प्लांटेड, प्लांट मतलब क्या करना, वो जो पौधे लगाना, पौधे लगाने को प्लांटेड कहते हैं। बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने पौधे लगाए, डिफरेंट मतलब बहुत तरह के प्लांट्स जो पौधे होते हैं उनको लगाए, इन देयर गार्डन, अपने बगीचे में, इन देयर गार्डन, तो उनके बगीचे में, गार्डन होता है बगीचा, तो प्लांट्स होता है पौधे। उन दोनों ने क्या किया, अपने बगीचे में बहुत पौधे लगाए। द रिटायर्ड टीचर वॉज गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, द रिटायर्ड टीचर जो थे, रिटायर्ड टीचर वॉज गिविंग, वो दे रहे थे ए स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ा, स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ा वाटर टू हिज प्लांट्स, अपने जो पौधे लगाए उसमें। एंड डिडंट ऑलवेज गिव अ फुल अटेंशन, एंड ऑलवेज मतलब हरगिज, गिव मतलब देना, डिडंट गिव नहीं देते, ए फुल अटेंशन मतलब पूरा ध्यान नहीं देते, टू देम उन अपने लगाए हुए मतलब पौधे, जो पेड़ के पौधे लगाए हैं उन पे पूरा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ से हमको मिल गया कि द रिटायर्ड टीचर जो है, द रिटायर्ड टीचर वॉज गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू हिज प्लांट्स, जो रिटायर्ड टीचर है वो थोड़ा पानी देते हैं अपने प्लांट्स में, अपने पौधे में। एंड डिडंट ऑलवेज गिव अ फुल अटेंशन, एंड हर वक्त इतना ज़्यादा फुल ध्यान नहीं देते टू देम। वाइल द अदर साइड क्या हो गया, वाइल द अदर नेबर, और एक जो पड़ोसी था, वो जो एजेंट था इंश्योरेंस कंपनी का, इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था। तो हैड गिवन अ लॉट ऑफ वाटर, उसने हैड गिवन मतलब दिया था, अ लॉट ऑफ वाटर बहुत सारे पानी, टू हिज प्लांट्स, अपने प्लांट्स को बहुत सारे पानी दिया। टेक्नोलॉजी का इंटरेस्टेड है तो ऐसा मतलब टेक्नोलॉजिकल कुछ ऐसा डेवलप कर दिया और अपने पौधे में हरगिज मतलब पानी देता रहता था। एंड लुक्ड आफ्टर, ख्याल रखता था, लुक्ड आफ्टर होता है ख्याल रखना, लुक्ड आफ्टर ख्याल रखता था, देम टू वेल मतलब बहुत अच्छे से। इसके बाद आया हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो उस पैराग्राफ में देखिए क्या कहता है, द रिटायर्ड टीचर्स प्लांट्स, जो रिटायर्ड टीचर का जो प्लांट है, जो पौधा लगाया था, पेड़ लगाया था, वेयर सिंपल, वो क्या था, एक साधारण जैसा था, बट लुक्ड गुड, बट देखने में मतलब खूबसूरत ही लग रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था। वो थोड़ा पानी देते थे, इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, फिर भी वो लुक्ड गुड, मतलब लुक्ड गुड होता है मतलब खूबसूरत दिख रहा था, अच्छा ही दिख रहा था। इसके बदले में क्या था, इंश्योरेंस एजेंट्स प्लांट्स, जो दूसरे पड़ोसी का जो प्लांट्स था, इंश्योरेंस एजेंट्स वाले का प्लांट जो था, वेयर मच फुलर एंड ग्रीनर, बहुत हरा भरा था, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ग्रीनर होता है हरा एंड फुलर तो होता है भरा। तो जब एक पेड़ जो पूरा मतलब अपने फुल एनर्जी पे होता है तो ऐसा लगता है हरा भरा दिखता है, तो ऐसा था, बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वन डे, एक दिन क्या हो गया, वन डे ड्यूरिंग नाइट मतलब रात में, ड्यूरिंग होता है वही वक़्त जो रात के वक़्त क्या हो गया, देयर वाज ए हैवी रेन, एक मतलब बहुत ज़्यादा सा रेन आ गया, बारिश हुआ, एक हैवी रेन आया बहुत। एंड वाइंड, एंड साथ में क्या आया, हवा भी आया, रेन मतलब बारिश एंड हवा भी आया, ड्यू टू ए माइनर मतलब छोटा सा एक स्टॉर्म होता है, जो जड़ होता है, जो क्या होता है, जो तूफान सा आता है, तो तूफान हवा रेन एक साथ ही आया, उसकी वजह से मतलब बहुत सारा बारिश भी हुआ। तो जो तूफान था उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब उसके दूसरे दिन की मॉर्निंग में, मतलब सुबह में क्या हुआ, बोथ ऑफ द नेबर्स, वो दोनों पड़ोसी केम आउट, बाहर निकल के आया, टू इंस्पेक्ट, जांच करने के लिए, देखने के लिए, द डैमेज ऑफ देयर गार्डन, कि अपने गार्डन में, अपने बगीचे में क्या क्या मतलब तूफान से बर्बादी क्या क्या हुई, वो देखने के लिए आए। तो उसके बाद क्या हुआ, डैमेज मतलब तो डैमेज हो जाना, क्या क्या नष्ट हो जाना, ख़राब हो जाना, क्या ख़राबी हुआ है तूफान से, तो वह देखने के लिए आए। द नेबर हु वाज एन इंश्योरेंस एजेंट, द पड़ोसी, द नेबर मतलब द पड़ोसी, हु वाज एन इंश्योरेंस एजेंट, जो इंश्योरेंस
कंपनी का एजेंट था, सो मतलब देखा, सी का पास्ट है, सो मतलब देखा, दैट हिज प्लांट्स, उसका जो प्लांट्स था, उसका जो पौधा लगाया था, केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स, वो क्या हो गया, जड़ से मतलब उखाड़ के ऐसा आ गया, जड़ से मतलब उखाड़ के, मतलब तूफान ने उसको उठा दिया, जड़ से उखाड़ के मतलब फेंक दिया। तो केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स, रूट्स होता है जड़, तो जड़ उखाड़ के मतलब आ गया। एंड वे आर टोटली डिस्ट्रॉयड, एंड वेयर, एंड क्या था, टोटली मतलब पूरे तरह से डिस्ट्रॉयड, मतलब पूरा एकदम खराब हो गया, पूरा डिस्ट्रॉयड होता है पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, मतलब वो पेड़ एकदम, अब पेड़ नहीं दिख रहा है, वैसा हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ, बट द रिटायर्ड टीचर्स प्लांट्स, वो जो टीचर जो थे, शिक्षक, रिटायर्ड टीचर्स के प्लांट्स जो पौधे थे, वे आर नॉट डैमेज्ड, उसका कुछ नहीं हुआ, वो डैमेज नहीं हुआ एट ऑल। एंड वी आर स्टैंडिंग फार्म होता है वो मजबूती से, स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहा, वो मतलब मजबूती से खड़ा रहा। तो क्या हो गया, रिटायर्ड टीचर के प्लांट्स जो है, जो पौधा था, वो तूफान के बाद भी मजबूती से खड़ा रहा। एंड जो इंश्योरेंस एजेंट वाले का जो पौधे था, जो लगाया था, पानी भी ज़्यादा देता था, ख्याल भी ज़्यादा रखता था, उसका पेड़ क्या हो गया, जड़ से उखाड़ दिया तूफान ने। ये तो बहुत अजीब सा बात हो गया। देखते हैं उसमें क्या होता है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम आते हैं, उसका देखेंगे क्या होता है। द इंश्योरेंस एजेंट नेबर, फर्स्ट लाइन, द इंश्योरेंस एजेंट नेबर, जो एजेंट नेबर जो पड़ोसी था, वह सरप्राइज, देख के एक ताज्जुब हो गया। ये तो ताज्जुब की बात है भाई, टू सी इट, देख के, टू सी इट मतलब देख के। ही वेंट, वो क्या किया उसने, वो गया, वेंट मतलब जाना, गो होता है जाना, गो का पास्ट है वेंट, वो गया कहाँ, टू द रिटायर्ड टीचर के पास, एंड आस्क, जाके पूछा, वी बोथ ग्रीव द सेम प्लांट्स टुगेदर, वही बोथ के हम दोनों ने, वही बोथ होता है दोनों, वही हम दोनों ने ग्रीव, बड़े किए, ग्रो होता है बड़ा होना, ग्रीव बड़े किए, द सेम प्लांट्स, एक जैसा ही पौधे लगाए हमने, बड़े भी किए, टुगेदर मतलब एक साथ लगाए। आई एक्चुअली, वो मतलब एजेंट कह रहा है कि आई एक्चुअली मैंने लुक्ड आफ्टर, ख्याल रखा, माई प्लांट्स, मेरे पौधे का, बेटर देन यू डिड फॉर योर्स, बेटर बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, देन यू तुम्हारे से, किससे, तुम्हारे से, यू डिड फॉर योर्स, यू डिड जो तुमने रखा था, फॉर योर्स तुम्हारे प्लांट के लिए, जो तुम्हारे प्लांट के लिए जितना ख्याल रखा था, उससे बेटर मैंने ख्याल रखा था मेरे प्लांट्स का। लेकिन क्या हो गया, एंड इवन गेव देम, एंड इवन क्या हो गया, यहाँ तक के गेव मतलब दिया था, देम उनको, मोर वाटर, तुम्हारे से बहुत ज़्यादा वाटर भी मैं डेली देता था मेरे प्लांट्स को। स्टिल, उसके बाद भी, माई प्लांट्स केम ऑफ, उसके बाद भी क्या हो गया, माई प्लांट्स, मेरा जो पौधा था, केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स, वो जड़ से उखड़ आया, वाइल, जहाँ तक योर्स डिडंट, तुम्हारा नहीं आया, मतलब तुम्हारा प्लांट तो ये फार्मली स्ट्रांगली खड़ा रहा, स्टैंडिंग रहा, लेकिन माई प्लांट्स क्या हो गया, मतलब जड़ से उखाड़ आया। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये मतलब कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो उस पैराग्राफ चला गया कि मैंने इतना अच्छा ज़्यादा ख्याल रखा, पानी भी ज़्यादा देता था डेली तुम्हारे से, लेकिन तुम्हारा पेड़ तूफान के बाद स्टैंडिंग रहा, खड़ा रहा, एंड माई पेड़ जो था, मेरा जो प्लांट्स था, वो क्या हो गया, तूफान के बाद जड़ से उखाड़ आया। ये कैसे संभव हो सकता है, तो यहाँ हम देखेंगे कैसे संभव हुआ। द रिटायर्ड टीचर स्माइल्ड, अब वो रिटायर्ड टीचर जो है उसने स्माइल किया, मतलब थोड़ा मुस्कुराया, एंड सेड, एंड कहा, यू गेव योर प्लांट्स, यू गेव तुम दिए थे, तुमने दिए थे, यू गेव मतलब तुम देते थे और तुमने दिए थे, योर प्लांट्स तुम्हारे जो प्लांट्स था, तुम्हारा जो पौधे था, मोर अटेंशन बहुत ज़्यादा ध्यान, अटेंशन होता है ध्यान, मोर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, एंड वाटर भी, पानी भी बहुत ज़्यादा देते थे। बट बिकॉज ऑफ दैट, तो उस कारण क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दैट उस कारण क्या हो गया, दैट डिडंट नीड, उनको ज़रूरत नहीं था, टू वर्क देमसेल्व्स फॉर इट, अपने लिए कोई काम करना ज़रूरत नहीं था। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि तुम क्या करते थे, जो प्लांट्स होता है कुछ अपने लिए भी, मतलब वाटर हो या उसके जो खाना होता है वो खुद ढूंढ लेता है, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा दिया, इतना ज़्यादा ख्याल रखा, वो अपने लिए कुछ काम नहीं कर पाए, कुछ ज़रूरत ही नहीं था उनके अपने लिए कुछ करने की। यहाँ से हो गया, बट बिकॉज ऑफ दैट, वो जो तुम इतना ज़्यादा देते थे, दे डिडंट नीड टू वर्क, दे डिडंट नीड टू वर्क मतलब उनको काम करने की ज़रूरत नहीं था, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं था, फॉर देमसेल्व्स फॉर इट, उनके अपने लिए, इस खाने के लिए, इस पानी के लिए। यू मेड
ईजी फॉर देम, यू मेड इट, तुमने कर दिया था, इट ईजी मतलब बहुत सहज कर दिया था, फॉर देम उनके लिए सब कुछ ईजी कर दिया था। वाइल जहाँ तक आई गेव देम जस्ट एन एडिक्वेट अमाउंट, आई गेव देम मैंने दिया था मेरे पेड़ों को, देम मतलब मेरे जो पौधे थे उन प्लांट्स को, जस्ट एन एडिक्वेट अमाउंट मतलब थोड़ा जो ज़रूरत थोड़ा होता है उस अमाउंट ऑफ वाटर दिया था, जितना ज़रूरत था मैंने सिर्फ उतना ही वाटर दिया उनको। एंड लेट देयर रूट्स सर्च फॉर मोर, एंड लेट मतलब मैंने अलाउ किया था, लेट होता है अलाउ करना, देयर रूट्स उनके जड़ों को मैंने सर्च करने में अलाउ किया था, सर्च फॉर मोर और ज़्यादा पाने के लिए क्या किया था, मैं सिर्फ उनको जो एडिक्वेट होता है मतलब जितना ना होने से वो मर जाएगा, वो पेड़ पौधे मर जाएगा, सिर्फ वही देता था। एंड लेट देयर रूट्स सर्च फॉर मोर, ज़्यादा सर्च करने के लिए और ज़्यादा सर्च करने के लिए मैं उनके जड़ों को मतलब अलाउ करता था, वो खुद ही ढूंढ लेते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड इस कारण क्या हो गया, देयर रूट्स वेंट डीप, देयर रूट्स उनके जो रूट्स थे, मेरे प्लांट्स के जो जड़ थे, वेंट चला गया, वेंट मतलब चला गया, डीपर बहुत डीप चला गया, तो वो बहुत डीप चला गया, बहुत नीचे चला गया, मतलब अपने लिए पानी ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे चला गया। एंड दैट मेड देयर पोजीशन, दैट मेड एंड वही बना दिया, उसी ने बना दिया देयर पोजीशन, अपने जो पोजीशन है स्ट्रॉन्गर, बहुत मजबूत एक पोजीशन बना दिया। दैट इज़ वाई माई प्लांट सर्वाइव, सर्वाइव मतलब बचे रहना, बच के रहना, दैट इज़ वाई इस कारण माई प्लांट्स मेरे जो प्लांट्स थे, मेरे जो पौधे थे वो बच गए। उसका मतलब क्या हो गया कि तुमने बहुत सारे ख्याल रखते थे अपने पेड़ों के लिए, बहुत ज़्यादा वाटर दे देते थे, पानी दे देते थे, इसलिए उन पेड़ों को कोई ज़रूरत नहीं था अपने लिए और ज़्यादा सर्च करने में। तो मैं क्या करता था, मैं थोड़ा जितना ना होने से वो मर जाता है मतलब वही देता था सिर्फ बच सके। तो एंड उनके जो जड़ थे वो अपने लिए और ज़्यादा पाने के लिए बहुत अपने खुद ही ढूंढ लेते थे, इसलिए ढूंढते ढूंढते वो जड़ जो है वो इतना नीचे निकल गया, इतना नीचे चला गया कि इतना नीचे जाते जाते वो स्ट्रंग बन गए, इसलिए मेरा जो पेड़ था वो खड़ा रहा एंड तुम्हारा जो पेड़ था वो जड़ से उखाड़ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, दिस स्टोरी इज अबाउट, ये स्टोरी किस बारे में है, दिस स्टोरी इज अबाउट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग होता है जो पेरेंट्स होता है अपने बच्चों को, माँ बाप जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को पालने का जो तरीका होता है उसे पेरेंटिंग कहा जाता है। तो उस बारे में स्टोरी है, द स्टोरी इज अबाउट मतलब ये स्टोरी उस बारे में है, पेरेंटिंग के बारे में है। वेयर चिल्ड्रन, जहाँ चिल्ड्रन आर प्लांट्स, चिल्ड्रंस आर लाइक प्लांट्स, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक प्लांट्स, वो पौधे के जैसे होते हैं, प्लांट्स के जैसे ही होते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज गिवन टू देम, अगर हम सारे चीज़ें उनको दे दे, इफ़ एवरीथिंग अगर सारे चीज़ें इज गिवन दिया जा सकता है, दिया जाता है टू देम उनको, मतलब अगर सारे चीज़ें अगर उनको दिया जाता है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल नॉट वही मतलब वो चिल्ड्रन विल नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझेंगे द हार्ड वर्क, उसके पीछे क्या मेहनत है, इट टेक्स टू अर्न दोज थिंग्स, इट टेक्स लगा टू अर्न मतलब कमाने में, दोज थिंग्स वो चीज़ें कमाने में कितना मेहनत लगा, वो चिल्ड्रन वो बच्चे नहीं समझेंगे, तो दे विल नॉट लर्न एंड वो नहीं सीखेंगे टू वर्क, काम करना नहीं सीखेंगे, देमसेल्व्स अपने आप मतलब खुद काम करना नहीं सीखेंगे, एंड रेस्पेक्ट करना भी नहीं सीखेंगे, सम्मान देना भी नहीं सीखेंगे। समटाइम्स इट इज़ बेस्ट, इसलिए समटाइम्स मोर ऑफन क्या होता है, इट इज़ बेस्ट ये बहुत अच्छा है टू गाइड देम, कि उनको हम गाइड दे, उनको हम राह दिखाए, गाइड करना मतलब उनको अच्छे राह दिखाना, उनका राहबरी करना, गाइड देना, अपने अंडर में काम कराना, तो गाइड करके गाइड देम, उनको हम राह दिखाए देम, इंस्टेड ऑफ गिविंग, इंस्टेड मतलब उसके बदले में, ऑफ गिविंग देने के बदले में, गिविंग देम, इंस्टेड ऑफ गिविंग क्या हो गया, इट इज़ बेस्ट टू गाइड देम, ये अच्छा है कि उनको हम गाइड करें, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम वो चीज़ें देने के बदले हम उसको गाइड करें, कुछ मतलब डायरेक्ट ना दे के हम उसको गाइड करें कि ये तुम कर लो, करने से तुमको ये मिल जाएगा। तो टीच देम मतलब उनको सिखाओ, हाउ टू वॉक मतलब कैसे चल सकते हो, हाउ टू वॉक होता है चलना, तो हाउ टू वॉक कैसे चल सकते हो वो सिखाओ, बट लेट देम फॉलो देयर पाथ, लेट देम मतलब अलाउ करो उनको फॉलो देयर पाथ, अपने रास्ता को फॉलो करने में उनको अलाउ करो।
तो उस मॉरल क्या हो गया, मॉरल वो हो गया, ये पूरा स्टोरी जो है, स्टोरी के थ्रू हमको ये बताया गया, जो पेरेंटिंग होता है, जो माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को पालने में मतलब ऐसे करे कि अगर अगर हम सारे चीज़ें बच्चों को दे दें तो उसके पीछे क्या मेहनत है वो नहीं समझेंगे, एंड वो नहीं सीखेंगे कि कैसा मतलब हार्ड वर्क किया जा सकता है। तो सब सारी चीज़ें देने के बजाय उनको क्या करो, गाइड करो, उनको राह दिखाओ कि ऐसे ऐसे काम करने से मिल जाएगा, तब जाके वो लोग स्ट्रांग बनेंगे, वो खुद काम करेंगे, वो खुद ऑनेस्ट बनेंगे, खुद काम के रिस्पेक्ट भी करेंगे, सब हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टोरी था, हमने कवर कर लिया। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब बने रहिए हमारे साथ, हम और भी स्टोरीज लेके आएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ये हमको इंस्पायर करता है और ज़्यादा अच्छी तरह वीडियो लाने की। तो हमने बहुत कोशिश की कि आपको समझाने की, अगर उसमें फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे मतलब मिस्टेक से डरना नहीं। हमने पहले वीडियो में भी कहा था, अगर मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम फिर सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मिस्टेक से डरना कभी नहीं, मिस्टेक करो फिर उसको सीखने की कोशिश करो, तो हो जाओ, स्ट्रांग बनते जाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जब भी हम कहीं भी नई वीडियो डालें तो मिस ना करें। एंड चले मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी